عمران سریز، ناول طارق بھنور، تحریر M.A. راحت۔ تحقیقاتی مشن کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ حقوق دیے جائیں کہ اگر وہ آس پاس خطرات محسوس کرے تو وہاں تک نہ جائے۔ یہ ان ماہرین کی ذمہ داری ہوگی جو اوشین ریسرچ سینٹر سے 4تھ فلیٹ پر جائیں گے، اور انہیں اپنے عمل کی تمام ذمہ داریاں قبول کرنا پڑیں گی۔ چنانچہ صدر ایکرمیہ کا یہ فرمان متعلقہ افراد کو فراہم کر دیا گیا، اور آخرکار 6 افراد پر مشتمل ایک مشن کو خصوصی چارٹرڈ طیارے کے ذریعے سینیگال روانہ کر دیا گیا۔ یہ گروپ جن 6 افراد پر مشتمل تھا، ان میں سے 2 افراد سمندر میں موجود آتش فشانوں اور مقناطیسی پہاڑوں پر ریسرچ کے ماہرین تھے۔ اپنے فن میں بے مثال 2 سائنسدان تھے جو اس بات کا جائزہ لینے کے مجاز تھے کہ اگر یہ کوئی مقناطیسی عمل نہیں تو پھر کیا ہے، اور باقی 2 نوجوان بہترین تربیت یافتہ غوطہ خور اور ایکرمین سیکرٹ سروس کے مایہ ناز جاسوس تھے، جن کے سپرد یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ قیمتی زندگیوں کی حفاظت کریں۔ انہیں اختیارات دیے گئے کہ اگر کوئی خطرہ درپیش ہو تو وہ 4تھ فلیٹ کمانڈر سے رابطہ کر کے ہر طرح کی جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ شیروں کا شیر بشیرہ اس وقت بھی اپنی کشتی میں مچھلیوں کے انبار لے کر واپس پلٹ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رات بھر رزق کی تلاش میں سرگرداں مچھیروں کی کشتیاں بھی ساحل کا سفر کر رہی تھیں، لیکن بشیرہ کی بات ہی کچھ اور تھی کہ اس کے ساتھی نوجوانوں کا خیال تھا کہ اس کے پاس ضرور کوئی ایسا تعویذ ہے جو اس نے کسی بزرگ سے حاصل کیا ہے، اور اس تعویذ کی مدد سے مچھلیاں خود لپک لپک کر اس کے جال کی طرف دوڑتی ہیں اور وہ ان مچھلیوں کو جال میں بھر لیتا ہے۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، اس کا تو ہر روز کا معمول تھا کہ جس رات وہ سمندر میں نکلتا ہے اس کی صبح بشیرہ کی کشتی مچھلیوں سے بھری ہوتی ہے، اور منڈی میں سب سے بڑا سودا وہی کرتا۔ نوجوانوں کے اس خیال سے مچھیروں کی بستی کا سردار رزاق نہیں تھا، اس نے ان باتوں کے جواب میں ہمیشہ یہی کہا تھا: ارے بھائیو، کیسی باتیں کرتے ہو، میں اس سے بالکل متفق نہیں۔ سب سے بڑا تعویذ انسان کے اپنے بازو ہوئے ہیں۔ ارے بازوؤں کی کمائی سے ہی عزت ملتی ہے۔ بشیرہ میں البتہ ایک بات ضرور ہے، سمندر سے اس کی لمبی یاری ہے، اور وہ سینہ تان کر سمندر کی اس حد تک نکل جاوے جہاں دوسرے جانے کی ہمت نہیں کرتے۔ بسم اللہ اس کی جھولی بھر دے دیتی ہے، مگر نوجوان اس بات پر اتفاق نہیں کرتے تھے، اور کئی بار وہ بشیرہ سے درخواست کر چکے تھے کہ بھائی بشیرہ، یہ تعویذ ہمیں بھی لا دے۔ بشیرہ ہنس کر کہتا: اولاد کی قسم میرے یار، کوئی تعویذ نہیں میرے پاس، بس اللہ کا نام لوں ہوں اور بیڑی سمندر میں ڈال دوں ہوں۔ اللہ کا نام لیا کرو، جو مانگو سو ملے گا۔ ہے رے، ارے اولاد ہے کہاں تیری جو تو سچی قسم کھانے لگا؟ یارو شادی ہو گئی تو اولاد ہو گئی نا، بشیرہ ہنس کر کہتا۔ نوجوان منہ بنا کر خاموش ہو جاتے، لیکن یہ سچ ہی تھا۔ بشیرہ کی سمندر سے گہری دوستی تھی، اور سمندر اسے مچھلیوں کے خزانے فراہم کرتا تھا، لیکن آج سمندر نے اسے جو کچھ دیا وہ اس کے لیے بڑا حیرت انگیز تھا۔ کافی دور نکل گیا تھا، جال پانی میں پڑا ہوا، لیکن رات کی تاریکیوں میں دیکھنے کی عادی آنکھوں نے وہ عجیب و غریب چیز دیکھی تھی جو پانی پر بہتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور بشیرہ کی آنکھیں اس کا جائزہ لے رہی تھیں
समंदर में कोई भी खतरनाक चीज़ आ सकती है। मुमकिन है गहरे पानियों से कोई शार्क मछली रास्ता भटक कर इधर आ निकली हो, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज़ थीं। थोड़ी ही देर में उसे अंदाज़ा हो गया कोई शार्क मछली नहीं बल्कि शायद इंसानी लाश है। बशीरा के दिल में हमदर्दी का तूफ़ान उमड़ आया और पानी में कूद गया। फिर समंदर की मौजों से लड़ता हुआ वो इस जगह पहुंच गया जहां ये इंसानी बदन नज़र आया था, लेकिन वो एक नहीं दो थे, एक मर्द एक औरत जिस हाल में थे उसे देखकर बशीरा को एहसास हुआ दोनों ने अपनी कमर से चमड़े की पेटी बांधी हुई थी और दोनों एक दूसरे से मुंसलिक थे। बशीरा ने सोचा कि शायद उन्होंने खुदकशी की है। बहरहाल लाशों की बेहुरमती तो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। जो कोई भी हैं इन्हें दफन करना ज़रूरी है। चुनाचे वो दरमियान से चमड़े की पेटी पकड़कर तैरता हुआ उन्हें अपनी कश्ती तक ले आया। अलबत्ता उन्हें कश्ती पर चढ़ाना ज़रा मुश्किल काम था। वैसे भी कश्तियों पर मछलियों का वज़न काफ़ी था। बशीरा ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, मालिक, रिज़्क़ का देने वाला तू है। आज नहीं तो कल ये रिज़्क़ हमें देगा, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन मरने वालों को हम मिट्टी दे दें। इसलिए आज मैं ये काम करूँगा। फिर बशीरा ने मछलियाँ उठा कर समंदर में फेंकना शुरू कर दी और इतनी जगह बना ली कि दोनों इंसानी लाशें इसमें समा सकें। मछलियाँ अब भी तय में रह गई थीं, लेकिन वो दोनों कश्ती में आ गए थे। बशीरा ने अपनी कश्ती साहिल के जानब चलाना शुरू कर दी और आसपास दूसरी कश्तियाँ भी नज़र आने लगी थीं, लेकिन अभी किसी से कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं था। खामखा लोग तजस्सुस का शिकार हो जाते। कश्तियाँ साहिल के करीब पहुंच रही थीं। बस्ती की औरतें और मर्द कमाओ पूतों के इंतज़ार में थे। हमेशा ही ऐसा होता था। सरदार रज़ाक भी अपने बेटे नूरा के लिए आता था। तमाम कश्तियाँ बखैर खूबी साहिल तक पहुंच गईं, लेकिन साहिल पर पहुंचने के बाद बशीरा ने चीखना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद बहुत सू को अपने पास जमा कर लिया। दो इंसानी लाशों को जब साहिल पर लाया गया तो खलबली मच गई। रज़ाक पास पहुंच गया। उसने झुककर दोनों के सीनों से कान लगाए और फिर उसकी ज़ोरदार आवाज़ उभरी, ज़िंदा है रे भाई, ज़िंदा है, अरे ज़िंदा हैं दोनों के दोनों, चलो उठाओ मेरे झोंपड़े में ले चलो। और इस खुशखबरी ने बशीरा का भी दिल खुश कर दिया। लाशों की तदफीन ही का नहीं मामला था, बल्कि इस वक्त उसे दो इंसानों की ज़िंदगी बचाने का एजाज़ मिल रहा था। वो खुशी खुशी काम में मसरूफ़ हो गया। बड़ी मुश्किल से दोनों की कमर से पेटियां खोली गईं और लोग उन्हें डंडा डोली करके रज़ाक के झोंपड़े में ले आए। रज़ाक का बूढ़ा बाप, जिसकी उम्र 104 साल थी और जो अपने पैरों से चलता था, अपनी आंखों से देखता और अपने दांतों से खाता था, इन लोगों की तरफ मुतवज्जो हो गया। फिर उसने हैरान लहजे में कहा, क्या बात कर रहा है बशीरा? ये गोरे लोग तो शक्ल से ही नहीं देख रहा। अरे इन्हें हमारी ज़ुबान क्या आए? अरे ना भैया ना, क्या बात है दादाजी? अरे भैया, इनके बदन की खाल देखकर तो लगे कि बहुत वक्त समंदर में गुजारा है, पर अल्लाह का करम देखो, दोनों के दोनों जीते हैं। चलो तुम सब करो, सबसे पहले वो डब्बा उठा कर लाओ और इनके सीने पर लेप कर दो। अरे बहू, कहाँ है रितु? चल इस औरत के लिए पर्दा कर ले और इसके सीने पर लेप कर दे। 104 साला शख्स अपने तमाम तर तजर्बे इन दोनों बहकर आने वालों के जिस्म पर आजमाने लगा और फिर उनके सीने ढक दिए गए। फिर 24 घंटे के बाद इन दोनों को होश आया। इस वक्त रज़ाक खान, बशीरा और दूसरे बहुत से लोग रज़ाक खान के झोंपड़े के पास मौजूद थे। सबको यही तजस्सुस था कि देखो इन दोनों का क्या होता है।
वैसे दादा ने यकीन दिलाया था कि जल्द ही दोनों होश में आ जाएंगे। फिर यही हुआ। दोनों ने आंखें खोल दीं और हैरान निगाहों से अपने आसपास खड़े हुए अजीबोगरीब इंसानों को देखने लगे। बूढ़े दादा के मशवरे पर झोंपड़े में दोनों को पास पास चटाइयों पर लिटा दिया गया था। दादा का कहना था, जिन लोगों ने इस तरह साथ जीने और मरने की कसम खाई हो और अपने आप को एक दूसरे से कस लिया हो, अगर इनमें से एक को दूसरा नज़र नहीं आया तो हो सकता है कि उसके दिल की हरकत बंद हो जाए। और इस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ था। नौजवान ने होश में आने के बाद पहले माहौल का जायज़ा लिया था और फिर मतवश निगाहों से इधर उधर देखा था और पास लेटी हुई औरत को देखकर उसके चेहरे पर सुकून की लहरें रक्सा हो गई थीं। उसने औरत को इशाने के पास से छू कर झंझोड़ा और उसके मुंह से आवाज़ निकली, क्रिस्टीना, क्रिस्टीना, क्या तुम ठीक हो? और जवाब में औरत ने आंखें खोलकर उसे देखा। फिर अपनी ज़ुबान में बोली, ओ माय गॉड, थैंक्स गॉड, हम दोनों ज़िंदा हैं। क्या वाकई हम दोनों ज़िंदा हैं? ओ नो, यकीन नहीं आता। डियर सिड, क्या वाकई समंदर ने हमें ज़िंदगी दी है? क्रिस्टीना, हम दोनों ज़िंदा हैं। आहा, वाकई हम दोनों ज़िंदा हैं। सड पार्लो ने आस्था से कहा। अरे ओ चाचा, ये क्या गट पटाए हैं? अरे क्या गट पटाए हैं तुम दोनों? क्या इंसानों की ज़ुबान में बात करना ना आवे तुझे भाई? अरे हम तेरी गटपट ना समझेंगे। इस आवाज़ पर इन दोनों ने निगाहें उठाकर उन्हें देखा। उनके चेहरे पर तशक्कर के जज्बात थे। फिर उनमें से मर्द ने कहा, तुम कौन हो दोस्तों? लगता है तुम हमारी ज़िंदगी बचाने का बायस बने हो। हाय रे तेरी गटपटी। अरे भाई हमारी बात सुन। अरे इंसानों की ज़ुबान ना आवे तुझे क्या बात कर रहा है बशीरा? ये गोरे लोग हैं तो शक्लो सूरत नहीं देख रहा। अरे उन्हें हमारी ज़ुबान क्या आवे है तो फिर क्या करें चाचा? आराम करने दो ससुरों को। दूध गरम करा रखा है मैंने इनके लिए और इसमें दवा भी मिलाई है। बाबा ने ये वो पिला दो इन लोगों को। मिट्टी के बर्तनों में दूध लाया गया और वो उठकर बैठ गए। फिर उन्हें दूध पेश किया गया। वो हैरतनाक जिस्मानी सेहत के मालिक थे, वरना अगर आम लोग होते तो ना जाने उनका क्या असर हुआ था। उन्होंने दूध के प्याले लेकर बड़ी खुशी के साथ इनकी हैयत को नज़रअंदाज करके दूध अपने मैदे में उतार लिया था। फिर उनसे मर्द ने क्या तुम हमें एक प्याली चाय पिला सकते हो? अरे क्या टी, हम ना समझे तेरी टी। अरे एक काम कर रहे हैं बशीरा। बोलो दादू। भैया यहाँ समंदर के किनारे बड़े लौंडे लौंडिया थिरकने आवे हैं और बेहयाई फैलावे हैं। अरे तू जा उनमें से किसी को पकड़ ला। वो भी गटपटा होगा और ये भी ससुरे गटपटे हैं। दोनों ससुरे गटपटे आपस में बात करेंगे तो हमारे पल्ले भी कुछ पड़ जावेगा। वाह रे दादू, जब सोचते हो बढ़िया सोचते हो। अभी लाया पकड़ के, बशीरा ने कहा और झोंपड़े से बैर छलांग लगा दी। ये बस्ती साहिल समंदर पर थी और थोड़े फासले पर तफरीह साहिल मौजूद था, जहाँ दर्जनों हिट बिखरे हुए थे। शहर से समंदर की सैर के लिए आने वाले काफ़ी लोग यहाँ मिल जाते थे। करीब ही जो दो अफराद बशीरा को नज़र आए वो उनके पास पहुँच गया। साहब जी सलाम। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई? इनमें से एक ने कहा। साहब जी तुम गटपट हो क्या? उस शख्स ने हैरत से पूछा। अरे वो जो आजकल के पढ़े लिखे बोले हैं ना, गटपट, जो हमारी समझ में ना आवे। अच्छा फिर? उस शख्स ने बशीरा को देखते हुए कहा। साहब जी ज़रा हमारे साथ चलो। हमारे झोंपड़े तक दो गटपटे हमें मिले हैं। एक मियाँ है, एक बीवी है। समंदर से निकाला है हमने। उन्हें बड़ी मुश्किल से होश में लाए हैं। हमसे गटपट करके बात कर रहे हैं पर हमारी समझ में कुछ नहीं आता। आप ज़रा तो उनकी बात समझ लो। दोनों अफराद को दिलचस्पी महसूस हुई, चुनांचा वो बशीरा के साथ चल पड़े। बशीरा उन्हें रज़ाक की झोंपड़ी में ले आया
پھر اس نے عورت اور مرد کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے ایک مرد نے کہا، آپ کون ہیں جناب؟ ان لوگوں کا کہنا ہے انہوں نے آپ کو سمندر سے نکالا ہے۔ او تھینکس گاڈ، ہماری زبان سمجھنے والے شخص سے واسطہ تو پڑا۔